DY365 ডিজিটেল নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানৰ ওচৰলৈ কি মুখ লৈ যাব নীতিশ নাইডু এই প্ৰশ্ন এটা উত্থাপিত হৈছে মোদীৰ ভয়ত মুছলমানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিলে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানৰ ওচৰত যাবলৈ সাহস হ'বনে নীতিশ কুমাৰৰ বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি আশ্বাস সংসদত তাৰ বিপৰীত কাম কৰিলে নীতিশ কুমাৰে এনে ধৰণৰ এটা অভিযোগ এনে ধৰণৰ মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পাইছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানৰ ওচৰলৈ কি মুখ লৈ যাব নীতিশ নাইডুৱে মোদীৰ ভয়ত মুছলমানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিলে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানৰ ওচৰত যাবলৈ সাহস হ'বনে নীতিশ কুমাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশ্বাস দি সংসদত তাৰ বিপৰীত কাম কৰে নীতিশ কুমাৰে ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ আইনী যুঁজু অব্যাহত ৰাখিব মুছলমানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব মুছলমানসকল ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ AIMIMৰ নেতা ইমতিয়াজ জলিলৰ এই মন্তব্য বিধেয়কখনক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানৰ ওচৰলৈ কি মুখ লৈ যাব নীতিশ নাইডুৱে বুলি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে মোদীৰ ভয়ত মুছলমানৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিলে নীতিশ কুমাৰে আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত গতিকে মুছলমান সকলৰ ওচৰত যাবলৈ সাহস হ'বনে নীতিশ কুমাৰৰ এই প্ৰশ্ন এতিয়া তেওঁক লৈ উত্থাপিত কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশ্বাস দি সংসদত তাৰ বিপৰীত কাম কৰে নীতিশ কুমাৰে বুলি কৈছে ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ আইনী যুঁজু অব্যাহত ৰাখিব মুছলমানে এই দাবী এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব মুছলমানসকল ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ AIMIMৰ নেতা ইমতিয়াজ জলিলে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিধেয়কখনক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব কংগ্ৰেছ নীতিশ নাইডুৱে কি মুখ লৈ যাব নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানসকলৰ ওচৰলৈ বুলি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে মোদীৰ ভয়ত মুছলমানৰ সৈতে প্ৰতাৰণা কৰিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে গতিকে কি মুখ লৈ যাব মুছলমানসকলৰ ওচৰত নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া উত্থাপিত কৰিছে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুছলমানৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নীতিশ কুমাৰৰ সাহস হ'ব জানো এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে ইমতিয়াজ জলিলে AIMIMৰ নেতা ইমতিয়াজ জলিলে এই প্ৰশ্ন সুধিছে যে মোদীৰ ভয়ত মুছলমানৰ লগত যে প্ৰতাৰণা কৰে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে গতিকে যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব সেই সময়ত কোনখন মুখ লৈ যাব নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বুলি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশ্বাস দি সংসদত তাৰ বিপৰীত কাম কৰে বুলি কৈছে নীতিশ কুমাৰে ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ আইনী যুঁজু অব্যাহত ৰাখিব এতিয়া মুছলমানসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব মুছলমানসকল আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं बताइए बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ देखिए ये मुसलमानों की जमीनें थी मुसलमानों की जायदादें थी इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है तो यानी कि आप इससे समझिए अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था आपने पूरे मुतवल्लियों को पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है हम उसका सपोर्ट करे होते लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो जो भी बेचने का है 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का और करोड़ों रुपए की जमीन है आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा आप औरंगाबाद के पूरी जालना रोड ले लीजिएगा उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप ये वो जितना भी है ये किसकी जमीन के ऊपर है नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है
पूरी की पूरी जमीन है तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे हे जागा आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये हाईकोर्टामध्ये। कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था? सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब के गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके। उसमें तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रस्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है, या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो, जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपए की जमीन है, आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद के पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप, ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है? नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे हे जागा आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये हायकोर्टामध्ये।